to all. Welcome to Asset Academy Baranada School 2020 or 21 new session. As you know, class 9th and 10th. Firstly, all of you, congratulations for class 9th, which promote from 8th class, and 10th also promote from 9th class. Now, this is the after 8th, 9th or 10th is the series of the SST, and one of the topic I would like to study and teach about chapter. You know about this resources and their development. Same topic will be available in class 9 as well as class 10. There is no difference between class 9 and 10. 9th is the base of class 10. All of you know. Do you know about, I am telling about the resources. What do you mean by resources? Little bit, I am speaking in Hindi and English mix because you are a big class student. Resources मतलब आप समझते हो सब? What do you mean by resources? I am speaking in English. Resources. There are the two words, re and sources. Anyone tell about the resources? Resources is nothing but everything we will get from the environment. ऐसी कोई भी चीज जो हम लोग एनवायरनमेंट से प्राप्त ऑब्टेंड करते हैं, that can be called the resources. Everything available in the our environment which can be used to satisfy our needs. What do you mean by resources? Resources means anything. You can write also. Anything available in our environment which can be used to satisfy our all needs. यहाँ पर anything, everything, whatever you can write. This is the easy definition. Whichever wherever we get from this environment, natural and anything available in our environment which can be used to satisfy our all needs. It can be natural, it can be also artificial. It is called the resources. All of you are understood? If you not understood, can ask from phone as well as WhatsApp also in our group. Class 8 promote to class 9 is very important topic for resources and development. And now I am telling the classification of resources. This topic. Today is the first session. I don't want to teach more, but a little bit I want to tell my basic needs. Whatever I want. Resources. Classification of resources. This is the classification of resources. Okay, I am writing here classification. Classification of resources.
Same method for chart, making chart. First one is depend on the classification based on the origin. Second one, classification based on the accessibility. And third one is the depend on the ownership. And last one is the development. There are the four main based on the resources. यहाँ पर चार तरह के रिसोर्सेज होते हैं: ओरिजिन, एक्सेसिबिलिटी, ओनरशिप एंड डेवलपमेंट. ओरिजिन मतलब कहाँ से ये सोर्स रिसोर्सेज आते हैं. हम लोगों को प्रकृति में नेचुरल, वेयर वी गेट फ्रॉम द नेचुरल. ओरिजिन मीन्स इट कैन बी बायोटिक एंड नॉन बायोटिक. 10th क्लास में 9th में पढ़ा होगा. बायोटिक एंड नॉन बायोटिक. ओरिजिन, बायोटिक, नॉन बायोटिक. बायोटिक मीन्स, सब ध्यान से सुनना. बायोटिक, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी obtained from the natural living thing. All types of natural living things. मतलब वो चीज जो हमको लिविंग थिंग्स से मिलती है. जस्ट लाइक ए प्लांट्स लिविंग थिंग्स हो गए. छोटा व्हाइट बोर्ड है इसलिए कम ही लिख पा रहा हूं. प्लांट्स, एनिमल, जो भी लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन ऑल्सो, उससे जो भी हमको संसाधन रिसोर्सेज मिलते हैं, इट कैन बी कॉल्ड ए बायोटिक ओरिजिन रिसोर्सेज. एंड सेकंड वन इज द SST is the only way of this study from the chart. And second one is the non-biotic. Non-biotic, just opposite of biotic. Non-biotic is all type of non-living things. Non-living things means like a mountain, river, मिनरल एटसेट्रा. मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो प्रकृति से तो पैदा होते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली हम लोगों को रिसोर्सेज, जैसे कि क्लाउड्स, दिस रेन फ्रॉम द क्लाउड्स, एंड माउंटेन, रिवर्स आर फॉल डाउन, वाटरफॉल्स एटसेट्रा. दिस इज द बायोटिक एंड नॉन बायोटिक. And you should write class 9th and 10th. And second one, ये मैं इरेज कर रहा हूं, लेकिन आप वहां पर इरेज नहीं करेंगे. एडजस्टेबिलिटी मतलब कोई एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, हाउ मच लाइफ. इट मीन्स ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. हिंदी में बोलते हैं कि कौन सा रिसोर्सेज कितने समय तक चलेगा. मेन चीज है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, कितने समय तक उसको चलेगा. इसमें कोई बहुत लंबे समय तक रिसोर्सेज चलता है, कोई कभी खत्म ही नहीं होता है, कोई बहुत शॉर्ट समय तक होता है. ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज मीन्स होता है एक्सेसिबिलिटी. एक्सेसिबिलिटी मतलब आपके accessibility can be two types: renewable accessibility and second one opposite of non
रिन्यूएबल, सब ध्यान से समझना। रिन्यूएबल जैसे कि नाम है, जो चीज वापस से रिन्यू हो सकती है। ऑल टाइप ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी many times recreate. Understood all of thing? I am speaking loudly. Recreate means many times. Just example in Rajasthan, there are the sources of solar energy, and in Gujarat wind energy. ये वो सोर्सेज होता है जिसका उपयोग में ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। ले सकते हैं मतलब जो रिन्यूएबल हो सकते हैं, और जैसा सोलर एनर्जी है, वाइंड। इन इजी लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड आवर मोबाइल फोन। Many times we can charge, and after charge we renew battery 100%, and then we can use. Is the easy example mobile phone battery. Mobile phone. Not need to be take any tolerance, tension. Non-renewable means opposite of that. It means we can't do create. Again. वैसी कोई भी चीज, anything we cannot create again and again. Just thinking, which will think this is like if जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर्सिक ऑयल या पेट्रोल बोल सकते हैं। पेट्रोल, जैसे मैंने गाड़ी में पेट्रोल भराया, आई फिल्ड इन पेट्रोल, बट आई कैन नॉट रीस्टोर माय पेट्रोल। जैसे गाड़ी में पेट्रोल भराया, पेट्रोल खत्म हुआ, उसके बाद मैं पेट्रोल को वापस रीस्टोर नहीं कर सकता। उसी पेट्रोल को वापस रीस्टोर नहीं कर सकता। मैं नया पेट्रोल भरवा सकता हूँ, लेकिन वो पेट्रोल जो एक बार खत्म हो गया, वो पेट्रोल वापस पैदा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मोबाइल की बैटरी जब खत्म हो जाती है तो वापस अपन चार्ज कर सकते हैं। वैसे का वैसे ऐसी कोई भी पेट्रोलिंग चीज, पेट्रोल, ऑयल भी बोल सकते हो, ये सब चीजें होती है। जस्ट नोट डाउन। In this session, and third one is the ownership. Ownership मतलब मालिकाना हक, मतलब ऑनर। I am the owner of this. Ownership मतलब जो खुद के काम के इसमें होती है, जो अवेलेबल है लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, ये बहुत इजी है। इंडिविजुअल, सेकेंड वन कम्युनिटी, it is very easy resources, national, and fourth one is the international. All of you can understand ownership as per the your name. Individual means I have the property, I have the own home. कार मतलब मेरी खुद की जो चीज है वो मेरे सोर्सेज है। मेरे पास कार है, मेरे लिए सोर्स है। मेरे पास बाइक है, वो मेरे लिए सोर्स है। मतलब अपनी खुद की प्रॉपर्टी, उसका ये एक तरह का सोर्स है। इसमें कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कम्युनिटी मीन्स ऐसी चीज जो मोर देन 2 पीपल की हो। जस्ट लाइक इट कैन बी यूज्ड एग्जांपल ऑफ द जस्ट लाइक ए प्लेग्राउंड।
जैसे अपने घर के पास में कोई ग्राउंड वगैरह होता है, वो पब्लिक पार्क जो सबके लिए होता है, नॉट ओनली वन, मैरिज हॉल, मैरिज हॉल, ये कम्युनिटी सामुदायिक जैसे रहता है, मतलब मोर देन 2%, कि इसका पर्सनल कुछ भी नहीं है। नेशनल, नेशनल मतलब जैसे कि नाम है वैसा इसका काम है। नेशनल, नेशनल मीन्स जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए उपयोगी हो, जैसे रेलवे, एयरलाइंस, जो गवर्नमेंट की संस्था है, विच एवर इज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द नेशनल रिसोर्सेज, एंड लास्ट वन इज द इंटरनेशनल रिसोर्सेज विच कैन द country from one country to another country, country first to country second. It is the classification of resources. All of you understood? Just make it first, second, third and fourth. सबके अलग अलग पार्ट्स है जो मैंने पहले बताया था। आप वीडियो बैक में साइड करके लिख सकते हैं अच्छा सा चार्ट, बायोटिक, नॉन बायोटिक। इसके अंदर भी 4 चीजें होती है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। आप यू कैन जस्ट बैक वीडियो एंड कैन सी, जस्ट राइट classification of resources can be dependent on origin, accessibility, ownership and development. Origin can be divided into 2 types, biotic, non-biotic. Biotic means living things, resources from the living thing. Non-living things means non-biotic. And accessibility is called the renewable. Renewable मतलब जो बार again फिल हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल जो वापस फिल नहीं हो सकता है, जैसे पेट्रोल एक बार खर्च हो गया तो खत्म हो गया, उसको वापस अपन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और ऑनरशिप, ऑनरशिप में इंडिविजुअल जो खुद की चीज होती है वो ऑनरशिप होगी, जैसे मेरा घर, मेरी कार, मेरी बाइक। कम्युनिटी जो मोर देन 2 पीपल्स, कम्युनिटी मतलब पूरे ग्रुप ऑफ द पीपल। नेशनल जो देश की चीज है वो रिसोर्सेज, एंड लास्ट वन इज द इंटरनेशनल। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप से मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज एंड क्लास 9 इज वेरी बेस ऑफ क्लास 10 इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ आज के लिए इतना ही। ये नेक्स्ट सेशन में मैं आपको और इससे एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा। आज के लिए होमवर्क, होमवर्क क्या है? क्लास 9th and 10th बोथ। What do you mean by resources? Resources. And classification, right? Classification chart of resources. Explain origin, accessibility, and ownership. इसके अंदर सभी आपको चार्ट बना के इसको एक्सप्लेन, डेफिनेशन लिखनी है। और लास्ट वन डेवलपमेंट मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ 3 चीजें बताई है क्लासिफिकेशन में,
ओरिजिन, एग्जिस्टिबिलिटी एंड ओनरशिप एंड डेवलपमेंट में नेक्स्ट सेशन में हो जाएगा आपके डेवलपमेंट में नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। ये होमवर्क है क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए। एंड क्लास 9th के बच्चे सोलर सिस्टम के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो क्लास 1 to 5 वीडियो में डाला हुआ है सोलर सिस्टम, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर जियोग्राफी को कोई भी जियोग्राफी को समझने के लिए आपको उसकी पूरी फिजिकल कंडीशंस की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर सोलर सिस्टम के बारे में क्लास 9 को और 10 को जानना है तो वीडियो क्लास 1 to क्लास 5 क्लास 6, 7, 8 का SST वीडियो देखें। थैंक यू वेरी मच। जस्ट राइट ए होमवर्क।